ہفتے کو کراچی میں دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردوں نے رینجرز کے کیمپ کو نشانہ بنایا اور پھر کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والے دہشت گرد کا ویڈیو بیان سامنے آیا کہ دہشت گردوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی اور پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور ڈیمارچ بھی کیا۔ ہفتے کی رات کو دہشت گردوں نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کے کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ پہلے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکہ کیا، پھر کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر بھارت کی حمایت یافتہ پراکسی جماعت الاحرار کے خوارج نے دہشت گرد حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے پہلے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکہ کیا، جس کے بعد انہوں نے کیمپ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر رینجرز اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے، جبکہ جوابی کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے اور ایک خارجی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد زخمی دہشت گرد عثمان علی کا ویڈیو بیان سامنے آیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے افغانستان سے تربیت حاصل کی ہے اور اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ جلال آباد عثمان علی ما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی صاحب نومېدو، دین استاد عمر کری صاحب نومېدو، څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو۔ افغانستان کې دوی ټول هغه راکړه تربیت راکړه، ټول لکان به دې پوهېدل، بس موږ ته خالي جیکټ راوړو، موزي پکې صرف نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم، بارود پکې موږ ته هلته تربیت راکړه، څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي، دلته چې دی موږ ته افغانستان لار څه کړي، عبدالهادي دلته بلد و، مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره راغلی۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان نے 28 جون کو افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک منظم زمینی آپریشن کیا۔ ساتھ ہی سرحدی علاقوں میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر حملے کیے گئے، جس میں مجموعی طور پر 29 خوارج مارے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق 28 جون 2026 کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ، خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ایک گروپ کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران اہم خوارجی کمانڈر خان فروش عرف زبل اپنے 3 ساتھی دہشت گردوں سمیت مارا گیا، جن کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت سے تھا، جبکہ کئی دیگر دہشت گرد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات کی پوسٹ کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تسلسل میں قابل اعتماد خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 28 اور 29 جون کی درمیانی رات پاک افغان سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد کیمپس اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں موجود 3 اہداف پر انتہائی درست حملے کیے گئے، جن میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ ان مراکز اور ٹھکانوں میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں، لیکن اپنے شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ملک کے عوام کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی ایپیکس کمیٹی کے منظور کردہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم کے ویژن کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ مگر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات پکتیکا، پکتیا اور کنڑ میں فضائی حملے کیے، جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو بھی طلب احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے ڈیمارچ کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق گزشتہ رات افغانستان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور کراچی میں دہشت گرد حملے پر ڈیمارچ کیا گیا، اور اسی نوعیت کا ڈیمارچ پاکستان کے افغانستان میں سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق یہ ڈیمارچ اس حقیقت کے پیش نظر جاری کیے گئے کہ کراچی حملے میں افغان شہری ملوث تھے، جن میں ایک حملہ آور کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ افغان سرزمین اور افغان شہریوں کو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور انہیں انجام دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखा है। ख़त के मुताबिक 1 जून 2026 को होने वाले एक आला सतही इजलास में फैसला किया गया था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों, ख़ासतौर पर अफगान शहरियों की वापसी और मुल्क बदरी के अमल को तेज़ किया जाए। इस फैसले के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों, खुसूसी इलाकों की इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो अफगान शहरियों समेत तमाम ऐसे गैर मुल्कियों को जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं या जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, डिपोर्ट करने के अमल को जल्द मुकम्मल करें और इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान पर सख्ती से अमल करें। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 10 जुलाई 2026 से अगर कोई अफगान शहरी पाकिस्तान में बगैर दुरुस्त और कानूनी वीज़ा के रहता हुआ पाया गया तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मकसद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की जाएँ ताकि इस फैसले पर मुकम्मल और यकसां तौर पर अमल दरामद किया जा सके। वज़ारत दाखिला ने दरख्वास्त भी की है कि 11 जुलाई 2026 से रोज़ाना की बुनियाद पर एक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भेजी जाए जिसमें तफसील शामिल हो कि कितने अफगान शहरी बगैर वीज़ा के पाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और इस वक्त कहाँ और किस हालत में हैं। इस मामले को इंतहाई अहम समझा जाए और इस पर मुकम्मल और फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। इस दौरान सालिसी की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी। कतर, तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने की कोशिशें की, मगर अब तक ये तमाम सिफारती कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। कशीदगी बढ़ती जा रही है। तमाम मामला पर बात करेंगे। पाक अफगान उमूर के माहिर, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर कार्रवाइयाँ हुई रही थी, पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहा था, कह भी रहा था इस मसले को हल किया जाए, कार्रवाइयाँ भी की गई, मगर मामला कराची तक पहुँच जाना, गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया जाना, ये आगे बढ़ गई है बात बहुत ज़्यादा, और क्या नज़र आता है आगे? शाहजेद साहब, कुछ इंडिकेशंस थी कि जो पाकिस्तान का अर्बन स्फीयर है उसको टारगेट किया जाएगा, और जिस तरह जो नॉन स्टेट एक्टर्स की मूवमेंट नजर आ रही है पिछले तकरीबन 3 माह के अंदर, तो कराची एक टारगेट जो है वो एटलीस्ट जब हम पैटर्न देखते हैं उसमें तो नजर आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जमातुल अहरार, एक तो वो फ्लूइड है उनकी आइडेंटिटीज, तो उनके जो बलोच फैक्शंस हैं उनके साथ भी रवाबित हैं, और दूसरी तरफ उनके दाइश जैसी तंजीमों के साथ भी एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है। लेकिन हम जो जियोग्राफिकल स्प्लिट इन ग्रुप्स के दरमियान में देखते हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी वो देख रहे हैं कि ब्लूम होने वाला है, उसमें जो है काफी जो है वो ऐसी मूवमेंट्स नजर आती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की कि वो चाहते हैं कि ये रोका जाए। तो इसलिए ये तसव्वुर किया जा रहा था और ये फेयर किया जा रहा था कि कराची या कोई और अर्बन हब जिसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अब जागेगी, उसको जो है ऐसा परसेप्शन जो है इसके लिए क्रिएट किया जाएगा कि वहां पर ये काम जो है ना हो, और हेंस कराची को जो है वो टारगेट किया गया। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि मुहर्रम के अंदर शायद कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो बने, लेकिन उसमें तो खैर खैरियत रही। रेंजर्स को टारगेट करना और फिर कराची के अंदर टारगेट करना, क्योंकि उसमें इस तरह की कैजुअलिटीज नहीं हुई जिस तरह यूजली इस किस्म के बड़े अटैक्स में हुई। अगर 4 सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो आते हैं उसमें तो एक दो जिंदा पकड़ा गया, और आपने उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो देखी होगी। लेकिन एक सिंबॉलिक मेजर जो है वो जरूर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेरिफेरी से लेकर अब शहरों के दरमियान में भी जो है वो एबिलिटी रखते हैं टारगेट करने की। मतलब, और इसमें अब ज़ाहिर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद हमें ख़राब भी होते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर हो या फिर स्ट्राइक्स की सूरत में हो। इस किस्म के हमले जब अर्बन सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा हो, यानी कि अब से पहले जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई उसके जवाब में कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। एक दरमियान का पीरियड ज़रूर आया था मगर अर्बन सेंटर्स तक बात पहुँच गई। देखें, जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक की बात है, कुछ बैकग्राउंड और ट्रैक थ्रू जो है वो बातचीत हुई है, और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। लेकिन वो डिप्लोमेटिक इम्पस की जो है 2 रीजंस हैं कि बात आगे जो है वो नहीं बढ़ी। एक तो जो आलमी सिनारियो के अंदर जो है वो ईरान टॉप इशू है, और जो ममालिक उसमें सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे थे उनके लिए इस टाइम जो है वो ईरान एक टॉप एजेंडा है कि उसको रिजॉल्व करना और आगे बढ़ाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो अफगानिस्तान के पेरिनियल इशूज हैं उसमें कोई बात आगे इसलिए नहीं
बढ़ रही, क्योंकि जो तालिबान का मौक़िफ़ है उसके अंदर कोई लचक का मुजाहरा जो है वो नहीं है। और हमने देखा कि स्ट्राइक्स पहले भी हुई और अब भी हुई, और ऐसा लग रहा है कि ये जो डिप्लोमेटिक एक पुल डाउन है उसकी वजह से जो है ये रिलेशनशिप के अंदर एक लिमिटेड जो है सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक होंगे। ऑफिशियल जराए से जितनी सी भी बात हुई इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, उन्होंने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि जो ऑपरेशन जो गजब लिल हक है वो कभी खत्म हुआ है, बल्कि ये पाकिस्तान ने अब अपना एक परमानेंट मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर लिया है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ेंगे तो रिएक्शन इसी तरह से नजर आएगा। और पहले हमने देखा कि कोई कॉन्डेमनेशंस वैसे भी नहीं आई, लेकिन कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरफ से जो है कोई कंसर्न्स दिखाए गए, क्योंकि अफगानिस्तान ऑब्वियसली जो तालिबान की हुकूमत है वो इन सारे कैजुअल्टी फिगर्स को जो है वो मानती भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो उनका मौक़िफ़ है कि इसके अंदर जो है हमारे पास कोई टीटीपी नाम की तंजीम भी नहीं है, जो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जो ईयू की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी, और जो ग्लोबल सिनारियो के अंदर यूएनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान एक हब बनता हुआ जा रहा है। बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली जिस मुल्क ने अफगानिस्तान को जो है वो उसके साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया, जो रशिया है, उसने भी उसी के बाद इमीडिएटली ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज बन रही है जो खित्ते को जो है वो गैर मुतवाज़िन कर सकती है। तो ये सारी बातें जब हम समेट लेते हैं तो इसका हल तो से हम सब समझते हैं कि निकलना चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेट्स की तलाश जो है वो अभी तक कोई कामयाबी साबित नहीं कर सकी, और ना अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा दूसरा ग्रुप है या उसकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो पहले अमेरिकन प्रेजेंस के दरमियान में थी कि वो आकर उसका कंट्रोल या संभाल ले। और ऐसा लगता है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को जो है वो बैक बर्नर पर रखा है, और पाकिस्तान विल हैव टू सफर द ब्रंट ऑफ इट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। एज ऑफ नाउ इस वक्त क्या कोई बायलैटरल इंगेजमेंट या किसी सालिस के थ्रू कोई भी इंगेजमेंट है, या सालिस भी पीछे हट गए हैं और कोई बायलैटरल इंगेजमेंट भी नहीं है? यही हो रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई मिलिटेंसी होगी तो पाकिस्तान मिलिटरीली उसका जवाब देगा, और वैसे बातचीत नहीं हो पा रही। देखिए, जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक चैनल है वो तो मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन जो है वो हो चुका है, और जो पाकिस्तान का एक लेंस था अफगानिस्तान के साथ एक रब्त रखने का, वो दो चीज़ों पर शाहजेब साहब जो है मुनहसर था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो अफगान मुहाजिरीन थी। ऑब्वियसली दैट इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोस टेक्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो हार्ट ऑफ एशिया जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते थे या कासा 1000 जैसे, उसके अंदर अफगानिस्तान को एक कनेक्टिविटी हब के तौर पे देखा जाता था। अब ईरान एक ऐसा वाइल्ड कार्ड निकल के आया है जो किसी के तसव्वुर में नहीं था पिछले 6 महीने भी, क्योंकि अगर आप रूट्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया या यूरोपियन ममालिक जाने के लिए आपको 5 ममालिक से गुजरना होगा। ईरान जो है वो आपको 2 ममालिक का जो है वो फासला डिस्टेंस देता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो स्टेट की का एक नैरेटिव है पाकिस्तान स्टेट का, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नए रूट्स खुल के आ रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो बाईपास किया जा रहा है। गोया ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के यानी ब्रेकडाउन के बाद भी कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसके अंदर कोई इंटरेस्टेड हो कि अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी के तौर पर या ट्रेड के हब पर जो है वो देखा जाए। उसका ओनर जो है वो दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो मुझे तो अब वो प्योरली जो है वो काउंटर टेररिज्म के डोमेन से जो है अफगानिस्तान को जो है देखा जा रहा है। और जहां तक मुझे लगता है अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है अभी तो पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग है, लेकिन जो अगला साल आ रहा है जो वहां पर ग्रुप्स जो है मुसल्लह जदोजहद के लिए जो है ग्लोबल एजेंडा के तहत तैयार हो रहे हैं, आई थिंक इट विल बी अ बिग कंसर्न बाकी दुनिया के लिए भी।